we are taking the map items, and as requested by many of you, I have decided to complete Arctic Ocean and take you to the other oceans before I start up with the two continents that we have delayed, Eurasia. So possibly today we'll be taking up the reference of oceans of the world. किस तरीके से उसको judge out करना है, एक general demarcation देंगे. So yes, I have agreed to, as because we are dealing up with Southern Ocean and Arctic Ocean. We have dealt up with Southern Ocean, and right now dealing up with Arctic Ocean. And these are the avenues which are largely not talked about when it comes on to the map study. As I maintained it throughout our classes that we are conducting for our revision for the upcoming prelims, we cannot segregate out clearly that this is a contemporary item or this is a map item in the question paper. So it's always advisable to revise the things with the contemporary edge added to it. Here we go. I've given you introduction of the shoreline countries that are related to Arctic Ocean located with North Pole. And when I try to justify the North Polar location of Arctic Ocean, what I need to understand and interpret very clearly is that Arctic Ocean incorporate the disputed domain. Russia have always been very aggressive in justifying on its territorial stretch. And what has been important in the present purview, I gave you this, it is the natural resource base that is very strongly identified with this region, combined up with the Arctic amplification. Arctic amplification term apply kiya ja raha hai for the melting up of the ice of Arctic Ocean. And this melting is basically increasing on the possibility of the navigable routes. Acha, before we go to anything else, let us quickly get on to the details beyond what we have learned yesterday, right? So see this map carefully. This map is giving us the demarcation of the Arctic amplification ka importance. We have got blue and red lines. I'm just highlighting them with a similar domain with a thicker marker. ये मेरा red line का demarcation है Arctic Ocean को justify करके. So this is how I'm taking. I'm going very rough. And this is my blue line, which I'm again highlighting for all of us to see. अच्छा, इससे मुझे benefit क्या मिलेगा अभी थोड़ी देर में समझा रहे हैं. So this is the extension of the ice cover that we see with Arctic Ocean, justifying on the temporal block. Arctic amplification is a very important current thing that is correlated with losing out of the ice cover. And this assessment that has come up with the reference of the ice cover extension of Arctic Ocean proves that 2018 में आपका जो perennial ice cover है वो बहुत majorly shrink out हुआ. If I have to take the things beyond this, so Arctic amplification की बात हमने justify कर दी with these two lines. Now what you have to understand, I'll be removing these lines. I have purposefully selected out this particular map to give you something very defined. ये basins को demarcate out करिए, marginal water bodies को demarcate out करिए, and that is very important. So getting on to the Greenland Sea, which we were comfortable with, that is marking up the domain relating to Greenland. Location को clarify करें. Greenland Sea is also related to Iceland. So what I do is I take up a yellow marker, make it very thin, and I'm writing out the land areas one by one. So this is my Greenland, this is my Iceland. I can easily notice this is my Norway. If you try to justify the Norwegian territory and move beyond, ये कोला पेनिनसुला है. कोला पेनिनसुला को आप रशियन टेरिटरी बताते हैं. So it is a Russian territory that you are taking up. फिर उसके बाद सारा shoreline रशिया का ही है. So Norwegian Sea, so Norway coming up. Now you have to notice Barents Sea. I want to make it slightly thicker. Now you can see Barents Sea. Please look it on in your school atlases. Kara Sea, Laptev Sea, East Siberian Sea, Chukchi Sea. ये सब गया shoreline of Russia के साथ. Arctic Ocean को जब आप demarcate करते हैं तो ये marginal extensions आपके लिए important है. Once I come to Beaufort Sea, we are basically marking our extension to. I hope all of us can visualize it. ये हुआ मेरा Alaska, and this is the location which is relating to Canada. So जब आप Beaufort Sea की बात कर रहे हो तो आप Alaska and Canada का combination को justify कर रहे हैं. So Arctic Ocean incorporate the marginal waters majorly
including, you can count them out or you can arrange them in terms of their location. So ब्यूफोर्ड सी को आप कनाडा और यूएसए के साथ एसोसिएट करें, बाफिन बे को आप डेनमार्क और कनाडा के साथ एसोसिएट करें। अभी हम ये एल्समीर आइलैंड के बारे में भी बात करेंगे, ग्रीनलैंड सी, आइसलैंड एंड डेफिनेटली डेनमार्क के साथ, नॉर्वेजियन सी विद नॉर्वे, और उसके बाद बेरेंस, कारा, लाप्टेव, ईस्ट साइबेरियन एंड चुक्ची इज गोइंग ऑन विद साइबेरिया। रशिया, रशियन टेरिटरी, रशिया के साथ आप क्या एसोसिएट करते हैं? यू एसोसिएट सम 24,000 किलोमीटर्स ऑफ द शोरलाइन लेंथ। तो जिस कंट्री को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है वो है रशिया, बिकॉज आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन विल मेक इट मोर नेविगेबल एंड दैट नेविगेबिलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड इन द मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्कटिक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हमने सिविल एविएशन में आर्कटिक रूट ले लिया टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस, बिल्कुल उसी तरीके से। So you have to understand first the location of marginal waters. Once you are done with it, then you can easily take up the domain of the sea routes that have been developed. जल्दी से इसके बारे में एक बार बात करते हैं। I'll just open up this particular map. यहाँ पर इस मैप को लेने के दो रीजंस हैं। सबसे पहले आपको नोटिस करना है रिवर बेसिन्स, because Arctic amplification and the navigable mouths of these rivers are definitely going to enhance out the domain. तो बहुत ध्यान से देखो। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट मार्जिनल वाटर बॉडी, कल आपको बता दिया था विच आर द कंट्रीज। सो वी टेक अप आर्कटिक शोरलाइन विद 6 countries, and when I take up the marginal water bodies, largest number with Russia, because Russia incorporate maximum shoreline with Arctic Ocean, बहुत एविडेंट सा पॉइंट है। अब जब आप रिवर सिस्टम्स की बात करते हो तो मैकेंजी रिवर ऑफ कैनेडा, Yukon River do extend itself in Canada, but it is majorly of Alaska. So Alaska मतलब you are taking it as United States of America. ओब, येनेसी, लीना तो बड़ी पॉपुलर रिवर्स हैं साइबेरियन रशिया की, आप इनको डिमार्केट कर सकते हैं। ओब इज ऑल्सो फॉलिंग इनटू यूरोपियन साइड, सो ओब, येनेसी, लीना को आप डिमार्केट आउट करें। इट्स डोमिनेंट एरिया इज इन साइबेरिया, सो आई विल इंसिस्ट कि हम इसको साइबेरियन रशिया बोले। एक नया नाम यहाँ पर है, उसको भी एड ऑन कर लीजिए, कोलिमा। सो व्हेन आई टॉक अबाउट नेविगेबल route in the Arctic Ocean, because of the Arctic amplification, we are having the possibility of navigable riverine network. So these rivers, 4 again in Russia, 1 in Alaska and 1 in Canada, is marking up its domain as important, a favorable edge. अच्छा, अब इसके साथ से आपको क्या समझना है, बहुत ध्यान से देखो। Before I make you understand that eastern and the western, that is northeastern and northwestern passage, डे 1 का जो लेक्चर है उसको देख लेना। अगर डे 2, एक्चुअली डे 2 में हमने आपको ग्रेटिक्यूल बताया था, उसको देख लेना। बहुत अच्छा व्यू है, इसलिए मैप सेलेक्ट करा। अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है एंड आई एम टेकिंग लैटिट्यूड्स एज सर्कल्स अराउंड इट, यू कैन इजिली सी 75 डिग्रीज नॉर्थ, 60 डिग्रीज नॉर्थ एंड 45 डिग्रीज नॉर्थ। जब आप इस डोमेन को लेकर एक जजमेंट पिकअप करने की कोशिश करते हो तो you can notice out, and I want to purposefully change the color to say blue, and carefully see, जब आप antipodal lines की बात करते हो, you can have that specification coming up here. Are we getting it? हमने आपको एग्जाम्पल बताया था 90 डिग्रीज वेस्ट का एंटीपोडल लाइन 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड होगा। Yes, all of us. हमने आपको बताया था, एंड आई थिंक यू कैन इजिली सी दिस, प्राइम मरीडियन, ये रहा 0 डिग्रीज लिखा हुआ है, उसका एंटीपोडल लाइन जो होता है वो है 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड। यू कैन सी द वैल्यू राइट हियर। पर 180 डिग्रीज वेस्ट 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड को आप इंटरनेशनल डेट लाइन का सिनोनिमस एक्सप्रेशन नहीं मानते, अभी थोड़ी देर बाद बता रहे हैं। तो इनको जज आउट करो। जैसे 45 डिग्रीज वेस्ट का एंटीपोडल लाइन अगर 135 डिग्रीज ईस्ट होगा, तो 45 डिग्रीज वेस्ट का, इसको ईस्ट लिखना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, 45 डिग्रीज ईस्ट का एंटीपोडल लाइन 135 डिग्रीज वेस्ट होना चाहिए।
आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस। आप जब इस पोलर व्यू को लेकर एंटीपोडल लाइंस का जजमेंट लेते हो, you get on a very, no, it's a different perspective. I'm taking a polar view. I'm making on latitudes visible as circle. So एक तो clarity मुझे इस मैप से ये आ गई that I have got which prominent antipodal line. दूसरी clarity आप already judge कर चुके हो, उसको identify करते हैं, purposefully making it as black. अब आपको पता है कि this is my 180 degrees longitude. इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने के लिए एक बेंट आप यहां देते हो, क्योंकि आपको चुक्ची पेनिनसुला को बचाना है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप दूसरा बेंट यहां देते हो, क्योंकि आपको अलूशियन आइलैंड्स को बचाना है। आर वी रिकॉलिंग इट? सो वेरी क्लियरली आई गेट माई सेल्फ द रिमाइंडर कि ये मेरा इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये मेरा कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, सो यूटीसी इज व्हाट आई टेक इनटू कंसिडरेशन। जैसे ही आपने इसको ले लिया, मेरे ख्याल से बहुत आसानी से हो गया। This will be your eastern hemisphere and this will be your western hemisphere. पोलर व्यू हमारे लिए इतना कॉमन नहीं होता क्योंकि हम पोलर व्यू के डोमेन में बात कर नहीं पाते, हम पोलर व्यू लेते नहीं है। We are much habitual of noticing a map, opening it at Pacific Ocean. Taking such view helps me in demarcating the things. तो मुझे दो चीजें समझ में आ गई। The marginal waters that I correlate with Arctic Ocean और एम्प्लीफिकेशन डेफिनेटली इज अ बिग एनवायरमेंटल चैलेंज, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इस बिग एनवायरमेंटल चैलेंज के साथ जो एक पॉजिटिव एज आप जज आउट कर सकते हो वो है नेविगेबिलिटी। अब जब नेविगेबिलिटी की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। व्हेन आई ट्राई टू टेक द नेविगेबल रूट, ठीक है, आई एम पर्पसफुली टेकिंग अ डिफरेंट एंड अ थिकर मार्कर सो दैट द थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू टू अप्लाई। आपको जज आउट करना है पैसेजेस। तो अभी हम पोर्ट सिटीज को स्पेसिफिकली तो मार्क आउट नहीं कर रहे, बट टेक इट आउट केयरफुली एंड अंडरस्टैंडेबली। ये आप पैसिफिक पर ले जा रहे हैं, पैसिफिक से आप इस रूट को, इट डू इनकॉर्पोरेट मरमंस्क, और उसके बाद आप इसको आइसलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से अटलांटिक ओशन की तरफ ले जा रहे हैं। आर वी नोटिसिंग इट? अब पर्पसफुली कलर चेंज कर देते हैं ताकि विजुअलाइजेशन थोड़ी सी आसान हो जाए, और वो विजुअलाइजेशन के लिए फिर से आई टेक दिस रूट, आई एम मूविंग वाया नॉर्थ ऑफ अलास्का एंड देन कनाडा। ये एक्चुअली थोड़े से मार्जिनल वाटर बॉडीज को ट्रेवर्स करते हुए जा रही है। इट इज टेकिंग इनटू अकाउंट ग्रीनलैंड एंड ये यहां से एंटर कर रही है अटलांटिक ओशन। जैसे ही हमने ये दोनों पोटेंशियल नेविगेबल रूट्स के बारे में बात करी, बिकॉज वी हैव रिमाइंडेड आवरसेल्व्स ऑफ द ग्रेटिट्यूड, मेरे ख्याल से बड़े आराम से बात हो जाती है कि जिस रूट को हमने कनाडा अलास्का के डोमेन पर मार्क करा है, इसको आप नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज बोलते हैं, और जिसको हमने ग्रीन मार्कर से मार्क करा है इसको आप नॉर्थ ईस्टर्न पैसेज बोलते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज और नॉर्थ ईस्टर्न पैसेज में आप अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन, आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन को लिंक प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी पोर्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी नेविगेबल लिंक्स आप जेनरेट आउट कर सकते हो विद नेविगेबल रिवर। सो आई हैव गॉट ग्रीन मार्कर इन माय हैंड, सो आई कैन टेक इट, इट्स नेविगेबल लिंक विद कोलिमा, लीना, येनेसी, ओब। तो मुझे ये बेनिफिट यहां से मिल सकता है, एंड आई कैन हैव द बेनिफिट ऑफ यूकॉन रिवर, तो अलास्का में एंटर कर जाओ, मैकेंजी तो कनाडा में एंटर कर जाओ, automatically that is going to give me the benefit. So these are the two defined passages that are being mobilized in the positive outcome, if I can use that expression, positive outcome that comes up with Arctic amplification, nothing but the melting up of the ice of Arctic Ocean. अच्छा, इसमें जो सबसे dominating position या जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, aggressive nature that has been applied is by default of Russia. तो ये दो पैसेजेस का डोमेन लेकर एक इंपॉर्टेंट मैप ओपन करके आपको बताते हैं बिफोर आई टेक यू फर्दर। ये थोड़ा सा कंटेम्पररी एज है, सो इसको ध्यान से देखेंगे। आई वांट यू टू सी दिस मैप फर्स्ट, नोट करो इसको बहुत ध्यान से। दिस इज रशियन डोमेन, आई थिंक यू आर मेकिंग सेंस विद इट। तो ये जो आप रूट डिमार्केट आउट कर रहे हैं, इस रूट को आप एक्चुअली ले किसके साथ रहे हो? इट विल बी द ईस्टर्न रूट।
तो जो हमने ईस्टर्न रूट को मार्क किया है, इट इज नॉर्थ ईस्टर्न. सो लेट मी राइट इट विद ब्लैक. ये मेरा नॉर्थ ईस्टर्न रूट है. ये नॉर्थ ईस्टर्न रूट मुझे एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करेगा. दिस इज माय स्वेज कनाल रूट, इंडो पैसिफिक, Strait of Malacca. I hope you are understanding. To understand what will be the difference in the distance to be traveled once I talk about this northeastern route. अच्छा, northeastern route देख रहे हो तो बहुत ध्यान से देखते जाओ. It majorly incorporate Russian domain. It majorly incorporate Russian domain. और इसी रशियन डोमेन पर आ गया एक कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन जो सारे नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, because that definitely makes importance when it comes on to the question. अब ध्यान से देखते जाएंगे. This is the shipping route development that has been identified. You have to interpret the important developed port cities. Carefully see, I'm talking about northeastern passage. तो northeastern passage का enlargement लेते हैं. I don't want to highlight down the things barring the exception of, आप यहाँ पर देख सकते हो, coastal route, mid route, transit route and other pole routes are being demarcated. तो ये बेसिकली जस्ट रेफरेंस सेक के लिए है. कोस्टल रूट्स को आप एसोसिएट करते हो जो ज्यादा पोर्ट सिटीज से एसोसिएटेड है, तो आप इनको देखते जाएं. थोड़ी देर पहले आपको बताया कोला पेनिनसुला. कोला पेनिनसुला के बिल्कुल टिप पर नॉर्थ पर मरमंस्क. मरमंस्क एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है. ऑल वेदर पोर्ट बोलते हैं इसको. जो रशिया एंड चाइना का एग्रेसिव डोमेन ऑफ द कोस्टल रूट बन रहा है वो मरमंस्क को तो इंक्लूड करता ही है. उसके अलावा अब ये सारी सेंटर्स आपके राडार पर होनी चाहिए. आई एम मेकिंग माई मार्कर वेरी थिन एंड आई एम क्रिएटिंग द कोस्टल रूट का डिटेल्स वन बाय. आर्कहांगेल्स्क पोर्ट सिटी एग्रेसिवली बीइंग डेवलप्ड टू एनहांस the coastal route, which are the other port cities that is being developed by Russia. Dixon. अब ये सारे नाम आ जाएं आपके मैप पर तो आप you should not be worried about how to tame up with them. अच्छा, आप ध्यान से देखते जाओगे that Dixon के साथ आप एक list of port cities highlight कर रहे हो with the navigable channel. अब आपको यही चीजें जज आउट करनी है, इसलिए हमने रिवर का रेफरेंस लिया. इगार्स्का को देख लो. These are the examples of the port cities that will be getting the benefit of navigable route. अच्छा, हम कोस्टल रूट को आगे बढ़ाएं और फिर ऐड कर ले अनदर पोर्ट सिटी नॉर्डविक. नॉर्ड पाइपलाइन के बारे में बताएंगे. नॉर्डविक से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वी हैव गॉट तिक्सी. अच्छा, ये सारे नाम तभी याद होंगे जब आप डिमार्केट आउट कर रहे हो the territorial stretch of each of the marginal waters, territorial stretch of each of the river basins that you are taking into consideration. लैप्टेव सी आ गए तो रिवर लीना का ही रेफरेंस ले रहे हो, ये रिवर लीना के साथ एसोसिएट कर लेंगे. And then as I continue with the list and identify the new and right here, अब ये जो है ना, ये सारे port cities जो हैं, they have been always identified in the domain of development. आपको जज क्या करना है, that mid route is being developed now, and ये जो mid route है इसको हाईलाइट करो. ये mid route is marking its traversing in between. ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है अभी थोड़ी देर बाद और डिटेल्स में बता देते हैं. स्वालबर्ड बोलते हैं इसको. नॉर्वेजियन आइलैंड है. ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है इसको फ्रैंक जोसेफ लैंड बोलते हैं. ये रशियन डोमेन पे फॉल करता है. एंड जब आप मिड रूट के बारे में बात कर रहे हो तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि आइस कवर रिड्यूस आउट होता जा रहा है. तो ये न्यू नेविगेबल शिपिंग रूट्स डेवलप हो रहे हैं. रशिया हैज ऑलवेज बीन इक्विप्ड विद द कैपेसिटी ऑफ आइस ब्रेकर्स सो दैट देयर शिप कैन इजीली नेविगेट. तो आप नॉट जस्ट एनहांसिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द कोस्टल रूट बट ऑल्सो इवॉल्विंग आउट द open oceanic or mid route as it is called in this particular location. As I have just mentioned Svalbard, हम एक important information आपकी यहाँ पर add on कर देते हैं. It is Svalbard in Norway. थोड़ा सा zoom up करके इधर ही लिख देते हैं. It is Svalbard in Norway that we have got INDARC. I hope you all are aware of it. That is Indian mission in Arctic. Svalbard में है. It is basically the Mood underwater observatory. जो Svalbard, which marks up its midway, it is at its midway.
From Norway, this is Norwegian territory, you can easily recognize it. Polar view देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा different दिखाई दे रहा है. And the North Pole. So IND-ARC जो कि Indian initiative है to study Arctic and its nature, it's Mood Underwater Observatory. It is right there at Svalbard. Svalbard politically belongs to Norway, and Frank Joseph politically belongs to Russia. Sufficiently talked about Arctic amplification and the influence. I can have positive influence also if I can think so that this is the positive outcome. अच्छा, ये contemporary map show करने के बाद वापस आ गए conventional map पर. And when I take up the reference of these routes and identifying their passages development, Russia without any doubt is showing more aggressive nature. Adding to it, if I have to take up the reference of other important characteristics here, I go back to the map which we utilized yesterday. I think this is going to give me more important reference to it. So एक जल्दी से zoom out करते हैं इसको और notice करते हैं ये वाला block. Be very cautious in understanding. ये मेरा North Polar location है, कल आपको बताया था. इस North Polar location के reference में ध्यान से देखेंगे, purposefully drawing it like this. You all are noticing, and I want to zoom it up. Lomonosov Ridge. Lomonosov Ridge was discovered in 1948. It is a submarine ridge which by default incorporate the tag of one of the most mysterious mountains of the world. Lomonosov Ridge जो है, इसका traversing North Polar area से होता हुआ है. So basically what you have to understand is that it is marking up its extension from Greenland का shelf से लेकर, are we locating Laptev Sea very clearly? Laptev Sea के reference में this group of island, ऐसे करके shade out कर देते हैं. This group of islands, this is called New Siberian Island. I want to write it here. New Siberian Islands. So जो Lomonosov Ridge का extension है, जैसे हमने कहा, it is very rich with resources, mysterious mountains. जब ice कम reduce होता जा रहा है, then the countries are having their claim beyond their exclusive economic zone. 6 countries के बारे में आप जानते हैं आराम से. इसमें आर्कटिक 5 को भी अभी मेंशन कर देते 1 मिनट में. अब ध्यान से देखो what I want to add here. I want to add लोमोनोसोव रिज की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को क्लेम करने वाली कंट्रीज में इंक्लूडेड है डेनमार्क. बाय डिफॉल्ट डेनमार्क, बिकॉज डेनमार्क आइडेंटिफाइज टेरिटोरियल स्ट्रेच ऑफ दिस पर्टिकुलर रिज विद इट्स लैंड एरिया ग्रीनलैंड. इसके अलावा कनाडा. जब आप कनाडा की बात कर रहे हो तो यू आर टेकिंग इनटू रेफरेंस द एल्समीर आइलैंड. तो आपको एल्समीर आइलैंड के बारे में याद करा दें. दिस इज द एल्समीर आइलैंड. आर्कटिक आइलैंड के बारे में बताया था ना कनाडा का. सो आई एम जस्ट लेबलिंग इट हियर. कनाडा किस कंटेक्स्ट पर क्लेम कर रहा है कि भाई एल्समीर आइलैंड के जो टेरिटोरियल जोन एंड ई जोन है उसके साथ आई कैन एसोसिएट लोमोनोसोव रिज. एंड व्हेन इट कम्स ऑन टू रशिया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दिस इज फ्रैंक जोसेफ लैंड. फ्रैंक जोसेफ लैंड. When I talk about Frank Joseph Land, it is identified to be northern limit of summer moss. तो रशियन क्लेम आ रहा है फ्रैंक जोसेफ लैंड के कंटेक्स्ट में, एंड ऑफ कोर्स आ रहा है न्यू साइबेरियन आइलैंड के कंटेक्स्ट में. सो आई माइट एनकाउंटर अ क्वेश्चन इन द टेरिटोरियल क्लेम एंड द बेसिस ऑफ दैट. जैसे ही आप ये लोमोनोव रिज के बारे में बात करते हो, उसके साथ साथ बहुत ध्यान से देख लेंगे. आई जस्ट वांट टू चेंज कलर टू मोर एविडेंट वन. इसके चारों तरफ आई एम यूजिंग ग्रीन कलर सो दैट इट इज इजिली एविडेंट. इसके चारों तरफ यू आर हैविंग डीप ओशियानिक बेसिन, और ये डीप ओशियानिक बेसिन आपको बड़े आराम से डीप ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है. आपको इन बेसिन्स के नाम याद नहीं रखने हैं, बट सिंपल लॉजिक ये देखना है that Lomonosov Ridge is marking up its traversing via North Pole, geographic North Pole, and it by default is demarcating the ocean into 2 unequal part. And कौन-कौन सी countries हैं जो आर्कटिक ओशन में क्लेम करती हैं वर्सेस कौन-कौन सी countries हैं जो लोमोनोसोव रिज पर क्लेम कर रही है. There is a difference there. So I've got 3 countries that are having their claim on Lomonosov Ridge. So this can be added to your domain of the learning. I've already given you understanding of marginal water bodies and graticule, so I don't want to get on there further. अच्छा, जब आप मार्क करते हो locational characteristics of Arctic Ocean,
एक इंपॉर्टेंट डोमेन आपके राडार पर जरूर आना चाहिए, and that important domain with the support of this map, it is giving you the easy understanding of latitudes and longitudes, so that is the reason referring it. ये तो मेरा नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा आर्कटिक सर्कल है. तो आर्कटिक सर्कल, as we are taking up the domain of learning of latitudes and longitudes and etc. तो 66.5 degrees north, 66.5 degrees north को पढ़ने का इससे बढ़िया और कोई तरीका है ही नहीं. तो थोड़ा सा जूम अप कर दिया. 66.5 degrees north traverses via Alaska. तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में यूएसए मिला हो तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड व्हाट आर द चॉइसेस गिवन. इट ट्रेवर्सेस वाया कनाडा, इट इज ट्रेवर्सिंग वाया ग्रीनलैंड. आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ग्रीनलैंड एंड इट इज ट्रेवर्सिंग. इसलिए जब ग्रीनलैंड का नाम आए तो यू कैन कंसिडर डेनमार्क, बिकॉज यू ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट that we do have Denmark. It's Greenland's, Denmark is territory of, I'm sorry, Greenland is territory of Denmark. अच्छा, अब इसके आगे बढ़े तो this is Norway, I can notice it. This is Sweden, I can notice it. This is Finland, I can notice it. And then I have got Russia. Russia तो कोला पेनिनसुला से शुरू हो गया, but इतना बड़ा एरिया है तो let us highlight it here. So the countries via which Arctic Circle traverses includes Canada as in USA, Canada, Alaska as in USA, followed on by Greenland, that is Denmark, Norway, Sweden, Finland, Russia. These are the countries that you should take into consideration and be very cautious in demarcating. हम 50 degrees south के beyond, 50 degrees north के south में अटलांटिक ओशन की शुरुआत मानते हैं. इसलिए जितने सारे आपको मार्जिनल वाटर्स बताए हैं, चाहे वो नॉर्वेजियन सी है, चाहे वो बेरन सी है, चाहे वो चुकची सी है, चाहे वो ब्यूफोर्ड सी है, उन सबको आपने आर्कटिक ओशन के मार्जिनल वाटर बॉडीज के तौर पर डिमार्केट करना है. आइसलैंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटोरियल स्ट्रेच ऑफ आर्कटिक ओशन कंप्लीटली, बट ऑफ कोर्स व्हेन आई टेक अप द डिमार्केशन ऑफ आर्कटिक सर्कल, we touch out the shoreline of Iceland and surely it is to be incorporated. Iceland को आप ना demarcate out करते हो Denmark channel से. This is Iceland to be included. उसका एक northern edge of the island touches out. जैसे हमने अफ्रीका के मैप में आपको कहा ना, नाइजर के लिए थोड़ा सा cautious हो जाना when it comes on to Tropic of Cancer, उसी तरीके से, but Iceland can be included. Repeating, so Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland and Russia. These are the territorial stretches of the countries that incorporate Arctic Circle, 66.5 degrees north. I think we are done with all the important domain that is related to this particular ocean. Okay. As referred in the beginning of the class today, that I'll be taking into account the other oceans of the world quickly first, before taking you to Europe and Asia, if the time permits today itself, otherwise definitely tomorrow. अब क्योंकि आपका new map has been highlighted, we have developed the new plate boundary map. Oceans का थोड़ा सा importance बढ़ जाता है. Oceans को पढ़ते समय दो तीन चीजें अपने दिमाग में रखनी है. While dealing up with continents, you become familiar with ocean. ऐसा तो होता नहीं कि आप ocean से familiar नहीं होते, लेकिन ओशंस के रेफरेंसेस में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए. लेट मी बिगिन फ्रॉम व्हाट वी लर्नड यस्टरडे आल्सो. तो थोड़ा सा जूम अप कर दिया एंड वी कैन इजीली जस्टिफाई. दिस वाज आवर टेरिटोरियल स्ट्रेच. आई होप ऑल ऑफ अस आर रिकॉलिंग. ये जो बटरफ्लाई शेप का हमने जिलैंडिया बनाया था, आई होप यू हैव रिकॉल्ड इट. सो जिलैंडिया तो हमारे राडार पर ऑलरेडी है. जिलैंडिया के अलावा आपको इस एरिया में हमने, आई नीड टू स्लाइटली मोर जूम इट अप, हमने आपको मैक्वेरिक बेलेरी रिज के बारे में भी बता दिया था. एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ टोंगा करमेडिक ट्रेंच. जब आपको नाम याद रखने हैं तो आपको उसको इसी मैप के सपोर्ट में याद रखना है, नहीं तो बहुत मुश्किल. लोकेशन वाइज आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल फीचर्स दैट आई एसोसिएट विद Pacific, the largest ocean of the world. Pacific, the largest ocean of the world, involving its shoreline with the North, South, Central Americas, Asia and Oceania. तो कल जो चीजें पढ़ी वो आपको बता दिया.
अब अगर हम इसके आगे थोड़ा सा और बढ़े तो वी कैन टेक अप द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑल टुगेदर और उन कंस्टिट्यूएंट्स को नोटिस करते चलते हैं वन बाय वन। ये फिलीपाइंस आइलैंड के साथ आप मिंडानाओ ट्रेंच डिमार्केट करते हो, कैरोलिन आइलैंड के साथ आप मरियाना ट्रेंच डिमार्केट करते हैं, मरियाना ट्रेंच के साथ चैलेंजर डीप है विच इज कंसिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद आपको ये नियर कंटिन्यूअस आर्क ऑफ ट्रेंचेस दिखाई देता है जिनको आप लेबल आउट कर सकते हो एज बोनिन ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच। जैसे ही आपको मैप ऑफ एशिया समझा देंगे बहुत आसानी से ये सारे नाम याद हो जाएंगे। एंड क्यूराइल ट्रेंच, दिस ट्रेंच वी ऑल आर वेरी कंफर्टेबल विद क्योंकि हम इसको बहुत टाइम से रिपीट आउट करते आ रहे हैं अपने स्टडी में। अलूशियन ट्रेंच, Aleutian Trench attains its name from Aleutian Island, Kurile Island से आ रहा है, Japanese you can easily take। एंड यहाँ पर लिख दें अगर हम मिंडानाओ, अच्छा कुछ कुछ स्कूल एटलसेस में आपको दिखाई देगा मिंडानाओ ट्रेंच जो है ये रिलेट करता है फिलीपाइंस से, सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट ऑल सबडक्शन जोन। When I talk about Pacific, I do incorporate smaller trenches। जैसे यहाँ पर मुझे जुआन दी फुका ट्रेंच मिलता है। राइट हेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री ग्वाटेमाला ट्रेंच मिलता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट लीनियर ट्रेंच, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, इसको कहते हैं चिली पेरू ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच कैसे भी जस्टिफाई करो। एंड साउथ ऑफ इट ब्रोकन, इसको आप बोलते हो चिलो ट्रेंच। तो आपको डिमार्केट करना है कि पैसिफिक ओशन में जो है डोमिनेंट सेट ऑफ फीचर्स जो हैं वो ट्रेंचेस हैं। जिलैंडिया हमारे राडार पर कल ऑलरेडी आ चुका था। इसके बियॉन्ड अगर आपको पैसिफिक ओशन में कुछ और ऐड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऐड करनी है वो ये है, दिस इज कॉल्ड हवाईयन हॉट स्पॉट। हवाईयन हॉट स्पॉट इज बेसिकली ऑलमोस्ट हाफ वे in the north central Pacific. It is world's most dominating location of hotspot. Reunion hotspot भी है, वनीला आइलैंड के बारे में बताते हैं अभी इंडियन ओशन में पहुंचकर। When I take up the reference of the demarcation that goes with a Hawaiian hotspot, it essentially correlates to, it is identified very clearly with active most volcano, creating out the domain that is relating clearly to one of the most significant kind of submarine volcanism। और इसकी लोकेशन कहां पर है? एकदम नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक में। और हवाईयन आइलैंड इज पॉलिटिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एनसीईआरटी का भी रेफरेंस है, टू डिसकंटिगुअस टेरिटरीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक गया अलास्का और एक जाता है हवाईयन आइलैंड। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट चीज जो पैसिफिक ओशन के बारे में जानकारी रखनी चाहिए वो है ये। So I'll just use the same red color, बड़ा evidently दिखाई दे रहा है। It makes me demarcate out the things easily। तो ये सारी चीजों को मार्कर को थोड़ा सा और थिक कर ले, ज्यादा फोकस मत दीजिए बट इसका याद आपको रखना चाहिए because sometimes we do encounter the question which is asking us to talk about consider the following statement which of them are correct or not। So हमने इसको purposefully बड़ा मेजर सा रेड पैच दे दिया है और इसको भी बहुत मेजर सा रेड पैच दे दिया है। एंड आई विल बी यूजिंग ऑन अ वेरी थिन येलो मार्कर टू राइट अबाउट इट। इसका नाम है एल्बेट्रॉस। आपको बिल्कुल ओशियानोग्राफी पर जाके सारी चीजों का रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है प्रिंसिपल फीचर्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। और इसका नाम है कोलाज, कोलाज सेंट्रल अमेरिकन भी बोलते हैं। प्रिंसिपल डोमेन ये है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर जज आउट करनी है वो ये है, दैट इज द रीजन आई हैव सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर मैप। आप यहां से कंटिन्यूटी देखते जा रहे हो और ये कंटिन्यूटी आपको थ्रू आउट मैप दिखाई देगी, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते हो। आप जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इट इज गिविंग यू द कंटिन्यूटी थ्रू आउट द सदर्न ओशन। और ये कंटिन्यूटी जो है इसी को आप बोलते हो सदर्न ओशन रिज। और बेसिकली ये मुझे बाउंड्री लाइन दे देती है बिटवीन सदर्न ओशन एंड रेस्ट ऑफ द ओशन। Not very well defined, but it is the boundary। यहाँ पर ये इतना एविडेंटली दिखाई नहीं दे रहा बट इट इज एप्लीकेबल राइट हेयर। अच्छा, अभी हम पैसिफिक को कंप्लीट कर रहे हैं तो आई जस्ट कंटिन्यू टू जूम इट अप है। पैसिफिक द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक द लार्जेस्ट ओशन कंटेम्पररी डोमेन में तो जिलैंडिया के साथ एसोसिएटेड है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे दिया बिकॉज वी हैव गॉट मेनी ऑफ द न्यू असेसमेंट्स एंड डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड।
इसके अलावा अगर आपको पैसिफिक ओशन में कोई और चीज को याद रखना है तो वो ये है, लेट माई मार्कर बी मच थिनर। आपको एक तो सबसे पहली चीज याद रखनी है दिस, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेट सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आप एग्जामिनेशन में एनकाउंटर करते हैं। मेरे ख्याल से आप गेस कर चुके हैं हम क्या कर रहे हैं। मेजर ओशियानिक करंट्स ऑफ पैसिफिक, तो ये मेरा हुआ पेरुवियन करंट। अगर पेरू कंट्री की लोकेशन जानते हैं, विच आई बिलीव हम सब जानते हैं, तो आप बड़े आराम से इस नाम को याद रख सकते हो। इसको हम बोल्ट भी बोलते हैं, ये याद कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड कैलिफोर्निया करंट, दिस इज कॉल्ड कुरोशिवो, यहां लिख देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, यहाँ पर रिलेटिविटी ऑफ द लोकेशन का ध्यान रखेंगे। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड कुरोशिवो इज वेस्ट बाउंड्री करंट्स ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक के वेस्ट पर है। तो ओशियानिक करंट्स को भी बहुत आसानी से याद कर लो। जो वाटर हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाएगी उसको कोल्ड होना ही है, और जो वाटर लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ जाएगी उसको वार्म होना ही है। सो एवरी वेस्ट बाउंड्री करंट विल बी वार्म एंड एवरी ईस्ट बाउंड्री करंट विल बी कोल्ड। ये लॉजिक के साथ आप आराम से ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री करंट्स का नाम याद कर लो। It is not going to give any difficulty whatsoever in your learning up of the things. I don't have any important domain to be added here beyond. Pacific Ocean को आप इन important aspects के साथ बड़े आराम से cover out कर सकते हो। I breach the sequence and go to Indian Ocean, जो मेरे मैप पे थोड़ा सा combined version में दिखा रहा है। अटलांटिक है जिसको तोड़ फोड़ रखा है, तो अटलांटिक के बारे में भी अभी आते हैं। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं जिसको हमने आपको एक हिंट ऑलरेडी दे दिया था। सो आई वांट ऑल ऑफ अस टू नोटिस इंपॉर्टेंट लोकेशन इन इंडियन ओशन। चलो रिजेस से ही शुरुआत कर देते हैं। सो विच आर द इंपॉर्टेंट सबमरीन कंस्ट्रक्ट्स दैट आई सी विद इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं चेगोस रिज, इसको बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज, इसको बोलते हैं मैस्करीन कोमोरो रिज, इसको बोलते हैं मेडागास्कर रिज, एंड इसका नाम है 90 डिग्रीज ईस्ट रिज। इसके बाद जो ये ब्रॉडर डायमेंशन के साथ एक्सटेंड आउट कर जाता है इसको हम सदर्न ओशन रिज बोलते हैं। अच्छा, अब इनका नाम लिख देते हैं मार्कर को थिनर करके जहां पर पॉसिबल है। दिस इज माय जूमिंग इट अप, इसको तो बोलते हैं सेंट पॉल प्लेट्यू। ये हुआ मेरा मेडागास्कर रिज, सो आई वांट टू राइट इट हियर। इसको हम बोलते हैं मैस्करीन रिज, सो आई स्ट्रेच आउट द एरो एंड राइट इट हियर, जगह नहीं है यहाँ। इसको हम बोलते हैं कार्लसबर्ग रिज। ये है आपका 90 डिग्रीज ईस्ट रिज। बेसिकली 90 डिग्रीज ईस्ट रिज के साथ ही आप अपने बैरन आइलैंड की एक्टिव वोल्केनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जज आउट कर सकते हो, क्योंकि अपने आईज को ट्रबल दोगे तो दिखाई देगा ये है मेरा अंडमान निकोबार, और इसके ईस्ट में पड़ता है बैरन आइलैंड। सो बैरन आइलैंड की एक्टिव वोल्केनिक डोमेन को आप 90 डिग्रीज ईस्ट के साथ ही एसोसिएट करते हैं। पहले नाम लिख देते हैं, उसके बाद फिर लेबल आउट कर देते हैं। इसको आप यू कैन इजिली सी, दिस इज कॉल्ड साउथ ईस्ट इंडियन रिज। टेक्निकल नाम भी इसका लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोकन या मरे रिज, एंड द रिज का एक्सटेंशन ये। हमने लगभग सबको लेबल आउट कर, इसका नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है चेगोस। चेगोस आर्चिपेलागो इंडियन ओशन रिज इज इंपॉर्टेंट डोमेन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है इंडियन ओशन रीजन में वो ये है। सो आई जस्ट वांट टू जूम इट अप हियर। आपको हमने अफ्रीकन मैप में समझा दिया था दैट मेनलैंड ऑफ अफ्रीका इतना मोज़ैक ऑफ कंट्रीज है कि वी समटाइम्स मिस आउट ऑन द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स दैट आर रिलेटेड टू इट। तो इसी मैप पर थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। Something contemporary that you can add on. So I can incorporate Mauritius, Seychelles. So I'm writing the names of these countries here: Mauritius, Seychelles, and Reunion Island of France, combined with Comoro. So Comoro Island इधर है तो Comoro को भी लिख देते हैं. And I told you that when we talk about Madagascar, उसके बिल्कुल neighboring में, Madagascar के थोड़ा सा south east में, ये रहा आपका रियूनियन आइलैंड। वी हैव लर्नड अबाउट इट ऑलरेडी। तो एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं। सो दीज 4 आइलैंड्स, कोमोरो, सेशल्स, मॉरिशस, तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज एंड रियूनियन, दे हैव क्रिएटेड, ये न्यूज़पेपर आइटम आ गया। अब आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप मैप में ढूंढते रहो, वनीला आइलैंड।
Vanilla Island is a group that has been created by Mauritius, Seychelles, Comoros, and Reunion of France to generate out a collective tourism and economic domain, so that these regions are strongly being facilitating with their cooperative movement, tourism, other economic mobilization, infrastructure and etc. 2010 में मोबिलाइज किया गया. इसमें आप इंटीग्रेशन को और कंसोलिडेट करते जा रहे हो. दैट इज द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट. जब आप इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करते हैं, आपको डिमार्केट आउट करना है. आई हैव यूज्ड ग्रीन कलर ऑलरेडी, सो आई विल नॉट बी यूजिंग इट. लेट मी यूज ब्लैक कलर. जो सबसे इंपॉर्टेंट ओशियानिक करंट है जिसको आप एसोसिएट कर सकते हो, इट इज वेस्ट बाउंड्री वार्म करंट. आपको मार्जिनल वाटर बॉडी बताया ही था, सो यू कैन इजिली जस्टिफाई. ये मोजाम्बिक हो गया और ये आपका है ईस्ट बाउंड्री कोल्ड करंट. इसका नाम है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. और जो आपको न्यू प्लेट बाउंड्रीज के बारे में बताया था, उसका रेफरेंस को याद में रखो और डिमार्केट आउट करो. ये पूरा का पूरा सबमरीन ट्रेंच है. ये पूरा सबमरीन ट्रेंच को आप सुंडा ट्रेंच बोलते हो. सुंडा ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है राइट है जावा डी. इंडियन ओशन इज कैरेक्टराइज्ड विद कन्वेंशनल थिंग्स. इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, तो यू हैव टू टेक अप द डिमार्केशन ऑफ दैट. And when I take up the reference of Vanilla Island group, I take up the new demarcation of the plate boundary. I hope you are recalling. Somali plate को अब अलग recognition दिया है. So you can take that into consideration when it comes to Indian Ocean. Pacific Ocean आपको समझा ही दिया है. अब जब अटलांटिक ओशन पर आते हैं, तो मेरे पास मैप में अटलांटिक ओशन डिवाइडेड है. तो अटलांटिक ओशन क्योंकि डिवाइडेड है, तो उसको हम ब्रेक पॉइंट्स पर पढ़ते हैं. सबसे पहले चले जाते हैं अफ्रीकन डोमेन की तरफ. तो आपने ऑलरेडी जज आउट कर लिया है दैट वी हैव सदर्न ओशन रिज राइट है. इस रिज को आप कहते हैं, माय मार्कर शुड बी थिकर. और जब आप ईस्ट बाउंड्री करंट की बात करोगे, विच विल बी दिस, इट इज कॉल्ड बेंगोवेला. गल्फ ऑफ गिनिया आप सब जानते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट अपर एंड लोअर गिनिया. सो ये मेरा ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक हुआ, जहां मुझे ज्यादा कुछ डोमेन दिख नहीं रहा और वी डोंट हैव मच टू स्पीक अबाउट. वेस्टर्न की तरफ चलते हैं. पहले साउथ की ही बात कर लेते हैं. सो वी हैव विजिबली पार्शियली है, सबसे पॉपुलर है. दिस इज मिड अटलांटिक रिज जिसका नाम है चैलेंजर. इसी का एक्सटेंशन नदर्न हेमिस्फेयर में, इसका नाम है डॉल्फिन. एंड आई वांट ऑल ऑफ अस टू नोटिस Brazilian current, Scotia Trench with Meteor D. आप लोग को याद आ रहा होगा, this is the territorial stretch of Graham Land, Graham Land Peninsula of Antarctica. Southern Ocean clearly दिखाई दे रहा है. So Chiloe, Scotia, Chiloe एक छोटा सा island. I hope you are recalling when I talk about Dalmatian shoreline of Chile. Similarly, when I go to the northern part of this ocean, I identify Caribbean. So I just mention it here. You all are aware of these locations, so it should not be difficult. Caribbean. Caribbean के साथ जो आप trench associate कर रहे हो, right here, Caribbean trench. Milwaukee Deep is basically part of, I want to write it here, Puerto Rico Trench. So name of the trench is Puerto Rico and the deepest point is Milwaukee Deep as is visible here. Dolphin Ridge का जो extension है, मार्कर को थिक करके बना देते हैं, वो कंटिन्यू करेगा आइसलैंड तक. एक्चुअली आइसलैंड रप्चर हो रहा है बिटवीन टू प्लेट्स एंड मिड अटलांटिक रिज जिसका नाम है डॉल्फिन, वही उसके सारे एक्टिव वोल्केनोज बनाता है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द ओशियानिक करंट सिस्टम्स है, ये वाला सबसे पॉपुलर ओशियानिक करंट है मेरे ख्याल से गल्फ स्ट्रीम. और जब आप इसका ईस्टर्न काउंटर पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हो, जिसका स्कोप यहाँ बहुत कम है, फिर भी हम ड्रॉ कर देते हैं. हमने यूनाइटेड किंगडम के ऊपर से बना दिया क्योंकि हमारे मैप में जगह नहीं बनी हुई है. दिस इज कॉल्ड कैनरीज करंट. एंड आपको बहुत ध्यान से याद आ रहा होगा, कैनरीज को हमने मार्क करा है एज एन आइलैंड विद मैप ऑफ अफ्रीका. व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन ओशंस, सदर्न ओशन भी आ गया था, आर्कटिक ओशन भी पढ़ लिया, तो वी जस्ट इनकॉर्पोरेटेड द अदर ओशंस. आपको बस ये दो तीन चीजों का दिमाग में ख्याल रखना है. एक, द प्रिंसिपल सबमरीन कंस्ट्रक्ट्स.
and दूसरा, which are the principal oceanic current system, because when it comes on to the oceanic current system, change of the global climate is precisely leading on to massive modification. तो आप कोई भी चीज एनकाउंटर करें, जैसे बड़ा पॉपुलर वर्जन है Atlantic meridional overturning circulation. Now we are having the judgment coming up of the Pacific meridional overturning circulation. That has to do with the subsurface current system. So first and foremost, I should be aware of what is the nature of the oceanic current system. So the all submarine constructs that you identify, which I have largely used with green color, is associated with your plate boundary, and that can be identified right. जहां जहां आपने ridges बनाए हैं वो सारे ridges यही हैं. Southern Ocean Ridge, Albatross Ridge, Colars Ridge, Socotia, Dolphin, Challenger. This is how you recognize. This is Indian Ocean Ridge, this is Southern Ocean Ridge. This is how you take up Southern Ocean Ridge demarcated. ये आपको न्यूजीलैंड में demarcate करके मैक्वेरिक बलेरी रिज बताया था. They all are related to that spreading boundaries that you correlate. और इसको हमेशा associate करें इस modified version से, तो आपको अपने आप ही demarcation में आएगा that I can see that this is all subducting boundary. तो trench ही तो होना चाहिए. ये सारा का सारा subduction boundary है. Peruchili Trench. This is where you have taken up the meteoroid deep. This is where you are taking up the reference of extension Tonga Kermadec to the Philippines. You are taking up Mariana, Bonin, Japanese, Aleutian. सब तो trenches ही होगा. ये रहा Aleutian. यहाँ आपने जुआन दी फुका trench बनाया. यहाँ आपने Guatemala trench बनाया. It has to do with the plate bound. So अगर location wise judge out करेंगे, then the things becomes easier for us to. I think I have sufficiently given you the understanding of the different oceans and their extension. अगर हम Arctic Ocean को थोड़ा सा zoom out करें, आप ये point को judge out कर सकते हैं मेरे ख्याल से. Can all of us easily notice कि ये वाला location जो है ये होना चाहिए. This is Seward Peninsula. This is Alaska. Canadian Basin. Arctic Ocean. Arctic Ocean का continental shelf का extension. You all are aware of Chukchi Sea and Siberian Sea and Laptev Sea. So Arctic Ocean and Southern Ocean को हमने exclusively study out कर लिया है. I don't. So this goes with ocean. I don't think it is requiring anything beyond. और इसके पहले जो आपको Arctic Ocean बताया वहां you have got much bigger new information applied. उसके साथ इसको associate कर लीजिए. So I have obliged the request that I got that we should cover up the oceans in the continuity. So now I'll be landing on to Europe in our study tomorrow. We have extended beyond 10th. बताया था आपको कि 10th तक cover करेंगे. I have never insisted on restricting myself with time. Bye from my side.